Hey guys, welcome back. So now in this video we'll be looking at volumes. Okay, so when we created the EC2 instance, at that time we selected the storage at the time of selection of storage. We selected EBS volume, and the volume was of 8 GB. So now here in this section, as like when you go into your EC2 dashboard, you have to click over here, Elastic Block Store volumes, and over here you will be able to see all those volumes which you have created, right? So right now in our case, as you can see over here, that this is our instance, and in the storage tab you can see the volume ID. So this is the volume which is attached with our instance. Now when I click over here, it will redirect to me to volumes tab only, and over here you can see this particular volume. If I'll cut this filter or remove this filter, then I'll be able to see all those volumes which are there, but since I clicked over there, so that's why it was showing me that particular volume only. So now this is my volume. Okay, now over here, what all things are there in the volume? So okay, so these are the volume IDs. As I told you, that every volume which gets attached to any particular instance, or every volume which gets created gets a unique ID. So these are the unique IDs of all the volumes. And in order to check, so you see these are the status, or the state of the volumes. So now all these volumes are in use. So in use in the sense, all these volumes are attached to some or another instance. I'll show you just a minute. So let me go back, and yeah, let me go back to instance tab. Now as you can see over here in instance tab, I've got 4 instances running, right? Now each of these instances has one or more than one volumes attached. So now for this particular instance, as I told you, that I've got this volume attached. For this particular instance, I've got this volume attached. For this particular instance, I've got this volume attached, and for this particular instance, I've got this volume attached. So that's how for all the instances I've got one volume. So note that I can attach more than one volumes also in one particular instance. Okay, but one volume cannot be attached to two instances. Okay, one volume cannot be attached to two instances, but one instance can attach more than one volumes. Okay, so that's the thing. That's the thing to be noted. It's not a big thing, but still you should be aware about it. Okay, now let's go back to volumes section. So now in volumes section, as you can see, I'll switch to हिंदी. So वॉल्यूम सेक्शंस में आप यहाँ पर जैसे देख सकते हो कि साइजेस यहाँ पर स्पेसिफाइड है कि कौन कौन से साइजेस के वॉल्यूम जो है वो बने हुए थे. वॉल्यूम का जो भी टाइप है वो यहाँ पे स्पेसिफाइड है, IOPS, ये सब चीज़ें जो हमने शुरुआत में जब हम इंस्टेंस बना रहे थे तब हमने ये सब सेलेक्ट की थी. क्रिएशन डेट है, कब क्रिएट हुआ है, अवेलेबिलिटी जोन इन वॉल्यूम्स का, हर एक वॉल्यूम जैसे इंस्टेंस का वॉल्यूम, इंस्टेंस का जो अवेलेबिलिटी जोन रहता है, वैसे ही वॉल्यूम का भी वही अवेलेबिलिटी जोन रहता है. ठीक है, तो यहाँ पर भी AP साउथ 1 है, AP साउथ 1 भी, ऐसे करके अवेलेबिलिटी जोन है. ठीक है, मैं इसको ऐसे कर लेता हूँ. लेट मी जस्ट डू समथिंग लाइक दिस. Okay, so as you can see over here, I have got two volumes in AP South 1B, two instances in AP South 1B, one in 1A and one in 1C. So that's how this is also there. Two volumes in 1B, and one is in 1A and one is in 1C. So just for easy's में आपका ये है अवेलेबिलिटी जोन है, सॉरी इंस्टेंस है, उसी easy में आपका वॉल्यूम रहेगा. ठीक है, अब यहाँ पर जो स्टेट में इन यूज़ लिखा हुआ है, वो इन यूज़ यहाँ पर इसलिए लिखा हुआ है बिकॉज हमारे जो भी वॉल्यूम्स है वो हमारे इंस्टेंसेस से कनेक्टेड है. ठीक है, इन केस अगर हमारा कोई वॉल्यूम किसी पर्टिकुलर इंस्टेंस से कनेक्ट नहीं होगा तो उसका जो स्टेट है यहाँ पर अवेलेबल दिखाएगा. ठीक है, जैसे मैं आपको अभी दिखा दूंगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. अच्छा, यहाँ पर भी इसका भी अलार्म स्टेट रहता है, जिसके बारे में हम लोग बाद में देखेंगे. अटैचमेंट इन्फॉर्मेशन, यहाँ पर इंस्टेंसेस के आईडीज़ दिए गए हैं, साथ में नाम भी दिए गए हैं.
कि कौन सा वॉल्यूम कौन सा इंस्टेंस को अटैच किया गया है। तो यहाँ पर वो भी स्पेसिफाई किया गया है कि भाई ये वाला वॉल्यूम है वो इस पर्टिकुलर टेम्प वाले इंस्टेंस को, ये वाला वॉल्यूम इसको है, ये वाला वॉल्यूम इसको, ऐसे करके। ठीक है, आपके केस में फिलहाल आपने सिर्फ एक ही वॉल्यूम अभी बनाया रहेगा, तो आपके केस में सिर्फ एक वॉल्यूम दिख रहा होगा, बट सिंस आई हैव मोर देन वन वॉल्यूम, सो इसलिए मुझे 4 दिख रहे हैं। मॉनिटरिंग वॉल्यूम का स्टेटस ओके है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंक्रिप्शन स्टेटस क्या है, इनक्रिप्टेड है, नॉट इनक्रिप्टेड है। अगर इनक्रिप्टेड रहेगा तो उसका KMS की और KMS की एलियास भी रहता है शायद से, जहाँ तक मुझे पता है, बट आई डोंट गो फॉर इनक्रिप्शन एंड ऑल। ठीक है, आप चाहो तो आप इनक्रिप्ट कर सकते हो। ठीक है, उसके लिए आई डोंट थिंक सो कोई एक्स्ट्रा चार्जेस लगता है, यू कैन डू द इनक्रिप्शन इन फ्री टियर ऑल्सो। ठीक है, अब यहाँ पर कैसा होता है, जैसे हम लोग देखते हैं, इसको मैं मिनिमाइज कर देता हूँ। यहाँ पर देखो क्रिएट वॉल्यूम करके एक ऑप्शन है। क्रिएट वॉल्यूम से पहले मैं तुमको और एक चीज़ बता देता हूँ कि यहाँ पर जैसे देखो ये हमारा इंस्टेंस है, इंस्टेंस पर राइट क्लिक करूँगा तो यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं, हमने ये सब चीज़ें देखी थी। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि मैं यहाँ पर नहीं, यहाँ पर से वो ऑप्शन निकाल दिए, ये पहले रहता था, अब यहाँ पर है। ठीक है, तो ये हमारा इंस्टेंस है, वॉल्यूम है, जो कि हमारे टेम्प इंस्टेंस से कनेक्टेड है। यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर टेम्प लिख कर आना चाहिए, ये देखो टेम्प लिख कर आ रहा है, मतलब ये मेरा टेम्प इंस्टेंस से कनेक्टेड है। यहाँ पर भी आप देख सकते हो कौन से इंस्टेंस से कनेक्टेड है, देखो टेम्प इंस्टेंस से कनेक्टेड है। ठीक है, ये बाकी सारे उसके डिस्क्रिप्शन है। ठीक है, अब ये स्नैपशॉट है उसका, अभी तो फिलहाल यहाँ पे कोई स्नैपशॉट नहीं है। ठीक है, स्नैपशॉट बनाना पड़ेगा, स्नैपशॉट कैसे बनाते हैं वो भी मैं बताऊंगा। तो यहाँ पर देखो, अभी यहाँ पर हमारे पास ये पर्टिकुलर इंस्टेंस है, ये वॉल्यूम है हमारा, ये टेम्प इंस्टेंस से जुड़ा हुआ है, कनेक्टेड है। इसको मैं अगर चाहूँ तो राइट क्लिक करके इसको डिटैच कर सकता हूँ। डिटैच करना मतलब कि जैसे वॉल्यूम को कनेक्ट करना है उसको डिस्कनेक्ट कर देना। अभी हमारा वॉल्यूम जो है हमारे टेम्प वाले इंस्टेंस से कनेक्टेड है, अब मैं चाहूँ तो इसको मैं डिटैच कर सकता हूँ। तो चलो डिटैच करके देखते हैं क्या होता है। डिटैच वॉल्यूम पर मैंने क्लिक किया, येस किया। अब यहाँ पर एक एरर आ रहा है। एरर क्या आ रहा है, एरर डिटैचिंग वॉल्यूम, वॉल्यूम का हमारा आई है अनेबल टू डिटैच रूट वॉल्यूम फ्रॉम इंस्टेंस। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि भाई हमारा जो इंस्टेंस है, जिस ये जो वॉल्यूम है, इस वॉल्यूम को हम जब डिटैच करने जा रहे हैं तो यहाँ पर एक एरर आ रहा है जिसमें लिखा है कि भाई हम इसको डिटैच नहीं कर सकते। डिटैच क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि ये हमारा रूट वॉल्यूम है। ठीक है, रूट वॉल्यूम को आप डिटैच नहीं कर सकते हो जब तक इंस्टेंस स्टार्ट मतलब रनिंग स्टेज में है। ठीक है, जब इंस्टेंस रनिंग स्टेज में है तब आप रूट वॉल्यूम को डिटैच नहीं कर सकते हो, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, रूट वॉल्यूम डिटैच कर दोगे तो फिर कुछ मतलब ही नहीं रह जाएगा ना। जैसे अगर आप, जैसे मैं पूछूँ कि आपने एक PC लिया, उसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल किया और उसके अंदर आपने हार्ड डिस्क डाला, सब कुछ डाला, हार्ड डिस्क के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम की फाइल से अगर आप हार्ड डिस्क निकाल लोगे तो फिर वो इंस्टेंस किस काम का रह जाएगा, कुछ नहीं हो सकता उसके अंदर। इसलिए ही यहाँ पर जो है, आप अगर कोई इंस्टेंस रनिंग स्टेट में है, मतलब कि इंस्टेंस चल रहा है, मतलब कि आप ऐसे समझो कि PC चल रहा है और बीच में से आप हार्ड डिस्क निकालने के लिए बात कर रहे हो कि भाई मैं हार्ड डिस्क निकाल लेता हूँ, तो मेरे ऑपरेटिंग सिस्टम के जो भी फाइल्स है उसके अंदर स्टोर्ड है वो भी निकल जाएंगे। तो ये चीज़ अलाउ नहीं करता है AWS। ठीक है, क्योंकि फिर वो इंस्टेंस चल ही नहीं पाएगा, इंस्टेंस बंद हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसलिए बोला जाता है कि यहाँ पर आप इसको जो डिटैच नहीं कर सकते रूट वॉल्यूम को। तो फिर आप डिटैच कब कर सकते हो, अगर आपको डिटैच करना ही है, मतलब आपको नहीं चाहिए कि भाई ये वॉल्यूम उस पर्टिकुलर इंस्टेंस से कनेक्टेड रहे। तो अगर आपको डिटैच करना ही है तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले कि आपको जो है आपका जो इंस्टेंस में जाना है, इंस्टेंस में जाकर आपको अपने जो इंस्टेंस को स्टॉप करना है। तो मैं यहाँ पे मेरे इंस्टेंस को स्टॉप कर देता हूँ। ठीक है, इंस्टेंस को स्टॉप करना ये का मतलब ये नहीं है कि इंस्टेंस को मैंने छोड़ दिया है या इंस्टेंस में जो भी अभी सब किया था वो सब चला गया है। इंस्टेंस स्टॉप हुआ है, उसको मैं वापस से स्टार्ट कर सकता हूँ, बाकी सारी चीज़ें वैसे ही रहेगी, सिर्फ हमारा पब्लिक IP जो है और पब्लिक DNS जो है वो चेंज होने के चांसेस है। ठीक है, तो यहाँ पर अब ये स्टॉपिंग लिख कर आ रहा है, लेट्स वेट फॉर सम मोर टाइम। ठीक है, ये स्टॉप हो जाएगा ऑलमोस्ट। अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पर हम जाते हैं वॉल्यूम्स में, और ये हमारा इंस्टेंस था। ठीक है, वॉल्यूम था जो उस पर्टिकुलर इंस्टेंस से कनेक्टेड है। अब इसको मैं क्या करता हूँ, राइट क्लिक करके डिटैच कर देता हूँ, यस डिटैच। अब देखो, अब यहाँ पे एरर नहीं आया। अब एरर क्यों नहीं आया, बिकॉज यहाँ पर अब मेरा जो PC है या जो मेरा इंस्टेंस है वो बंद है, स्टॉप स्टेज में है। तो अब मैं इस वॉल्यूम को डिटैच कर सकता हूँ। ठीक है, मैं इस वॉल्यूम को डिटैच करके किसी और वॉल्यूम को अटैच भी कर सकता हूँ। ठीक है, लेकिन अब इन वॉल्यूम्स में से मैं किसी को अटैच नहीं कर सकता क्योंकि ये वॉल्यूम ऑलरेडी किसी से अटैच्ड है। जैसे मैंने बोला तो थोड़ी देर पहले कि हम क्या कर सकते हैं कि हम एक वॉल्यूम को किसी दो इंस्टेंस से अटैच नहीं कर सकते। ठीक है, लेकिन एक इंस्टेंस में दो वॉल्यूम्स अटैच ज़रूर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो मेरे 3 वॉल्यूम्स हैं इनको तो मैं यहाँ पर इस पर्टिकुलर इंस्टेंस में अटैच नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि वो जो ये सारे ऑलरेडी किसी ना किसी इंस्टेंस से अटैच्ड हैं। हाँ, मैं एक नया वॉल्यूम बनाकर क्रिएट वॉल्यूम पे क्लिक करके एक नया वॉल्यूम बना सकता हूँ, उसको मैं उस पर्टिकुलर इंस्टेंस से भले अटैच कर सकता हूँ। ठीक है,
बट वो जो नया वॉल्यूम रहेगा वो खाली वॉल्यूम रहने वाला है, उसके अंदर आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के फाइल्स वगैरह वो सब नहीं रहने वाले हैं, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम के फाइल्स तो आपके इस वॉल्यूम में थे रह गए थे। ठीक है, तो वो खाली वॉल्यूम रहेगा। खाली वॉल्यूम अगर आप अटैच करोगे तो भी कोई फ़ायदा नहीं रहने वाला, क्योंकि आपके ऑपरेटिंग सिस्टम जो आपने ई एम आई का यूज़ करके जो भी किया था, वो सारी चीज़ें तो वैसे के वैसे ही रह गई, वो इस वॉल्यूम के अंदर में उसमें तो आएगी नहीं। तो ये एक सिनारियो है। ठीक है, तो ये क्रिएट वॉल्यूम का आप पूछोगे कि क्रिएट वॉल्यूम का यूज़ क्या है, तो क्रिएट वॉल्यूम का यूज़ हम लोग आगे देखेंगे। फिलहाल हम लोग ये देखते हैं कि यहाँ पर देखो, अगर आपने डिटैच कर दिया तो यहाँ पर उसका स्टेटस जो है अवेलेबल आ सकता है, मतलब कि ये वॉल्यूम जो है वो अवेलेबल है, इसका अटैचमेंट इन्फॉर्मेशन गायब हो गया है, ये वॉल्यूम अवेलेबल है। अगर आप चाहो तो इस वॉल्यूम को किसी और इंस्टेंस के साथ अटैच कर सकते हो, वो कैसे करना है वो भी मैं बता देता हूँ। तो राइट क्लिक करना है आपको, अटैच वॉल्यूम पे क्लिक करना है। ठीक है, आप इसको चाहो तो डिलीट कर सकते हो, क्योंकि अननेसेसरी वॉल्यूम रखने से आपका पैसा भी जाएगा। जो आपका फ्री टियर है उसमें आप 30 GB तक के वॉल्यूम्स रख सकते हो। ठीक है, 30 GB के ऊपर अगर आप वॉल्यूम्स रखोगे तो आपको उसका जो भी एक्सटर्नल एक्स्ट्रा GB रहेगा, एक्स्ट्रा 1 GB भी रहेगा, तो उसका आपको मंथली पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो मेरे पास जैसे आप जो है, मैं तो आपको रिकमेंड करूँगा कि आप 8 GB का ही रखें, क्योंकि डिफ़ॉल्ट 8 GB AWS बोलता है, तो 8 GB का 1-2 वॉल्यूम रखिए, मैक्सिमम 3 रखिए, 3 से ज़्यादा मत रखिए, बिकॉज 3 से ज़्यादा अगर 8-8 GB के वॉल्यूम्स रखोगे तो वो 8 4 32 हो जाएगा, 2 GB का आपको पैसा देना पड़ेगा, क्योंकि जो AWS है फ्री टियर में आपको सिर्फ और सिर्फ अप टू 30 GB तक का वॉल्यूम अलाउ करता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, अगर मुझे इसको डिलीट करना है मैं डिलीट कर सकता हूँ। स्नैपशॉट और ये सब चीज़ें मैं बताता हूँ बाद में, मॉडिफाई वॉल्यूम भी क्या है वो भी मैं बताऊँगा। अब मैं फ़िलहाल डायरेक्टली अटैच पे जाता हूँ, तो मैंने अभी डिटैच किया था वॉल्यूम का, अब मैं अटैच करना चाहता हूँ। तो अब अटैच करते वक्त मुझसे यहाँ पे पूछा जाएगा कि आपको उस वॉल्यूम को किस पर्टिकुलर इंस्टेंस से अटैच करना है। ठीक है, अब यहाँ पर जो है मैं जो मेरा वॉल्यूम है उसको मेरे को अटैच करना है किसी भी इंस्टेंस से, तो मुझे उस पर्टिकुलर इंस्टेंस का यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, ID डालना पड़ेगा। ठीक है, अब लेट्स कंसिडर कि मैं यहाँ पर जो है इस पर्टिकुलर इंस्टेंस का ID डालने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर लेट मी चेक। ठीक है, तो व्हाट आई विल डू कि मैं इस पर्टिकुलर इंस्टेंस का ID यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ इस तरीके से, और मैं बैक जाता हूँ। बैक जाने के बाद यहाँ पर मैं जाता हूँ और राइट क्लिक करता हूँ, अटैच वॉल्यूम पे क्लिक करता हूँ, और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि मैं उस पर्टिकुलर इंस्टेंस का ID डाल देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर देखो ID डालने के बाद क्या आ रहा है, यहाँ पर नो मैचिंग रनिंग और स्टॉप्ड इंस्टेंस वर फाउंड इन अवेलेबिलिटी जोन AP साउथ 1M। अब ये कहा क्या जा रहा है कि यहाँ पर जो है मैंने जो इस पर्टिकुलर इंस्टेंस का ID डाला था, कौन सा वाला इंस्टेंस है, ये वाला इंस्टेंस है, ये वाला इंस्टेंस कौन से अवेलेबिलिटी जोन में रन हो रहा है वो देख लेते हैं, AP साउथ 1C में। ठीक है, अब यहाँ पर AP साउथ 1C है, और मैंने ये जो मेरा वॉल्यूम जो है जो जिस AZ में है वो AZ का ना वो AZ है AP साउथ 1M। तो यहाँ पर जब आप इंस्टेंस को अटैच कर रहे हो तो वो अलर्ट दिखा रहा है कि वो नो रनिंग या फिर स्टॉप्ड अवेलेबिलिटी जोन 1A, अवेलेबिलिटी जोन 1A में कोई इंस्टेंस नहीं है, ये जो मैंने इंस्टेंस का ID डाला ये 1A का नहीं है, तो इसके लिए अब वो अलाउ नहीं कर रहा है। ठीक है, मैं इसके आगे नहीं कर सकता, इसको अटैच भी नहीं कर सकता हूँ मैं, अगर मैं चाहूँ भी तो मैं इसको अटैच नहीं कर सकता हूँ। लेट मी जस्ट चेक स्लैश डेव, ये क्या है वो भी मैं बताता हूँ, स्लैश डेव स्लैश XVDA। ठीक है, देखो यहाँ पर क्या आ रहा है, द वॉल्यूम इज़ नॉट इन द सेम अवेलेबिलिटी जोन एज इंस्टेंस। ठीक है, तो इसका मतलब है कि भाई आपको जो है अगर आप किसी वॉल्यूम को अटैच कर रहे हो किसी पर्टिकुलर इंस्टेंस से, तो उस वॉल्यूम का अवेलेबिलिटी जोन और उस पर्टिकुलर इंस्टेंस का अवेलेबिलिटी जोन दोनों मैच होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर क्या कर सकते हैं, अब यहाँ पर जो है ऐसा करके देखते हैं कि हम जो है इस तरीके से सबसे पहले तो आप ये देख लो कि इस तरीके से आप वॉल्यूम को अटैच कर सकते हो किसी भी इंस्टेंस से। ठीक है, अभी तो फिलहाल हमारे पास 1A में सिर्फ एक ही इंस्टेंस है जो कि टेम्पो वाला है, तो हम उससे ही वापस से इसको अटैच कर देते हैं। लेकिन अगर आपके पास कोई और इंस्टेंस रहता जो कि 1A में रहता, तो आप इस वॉल्यूम को उस इंस्टेंस से भी अटैच कर सकते थे। अच्छा, अब यहाँ पर एक चीज़ और बताना है मुझे अटैच वॉल्यूम पे, तो अटैच वॉल्यूम पे यहाँ पर और एक चीज़ ये है कि यहाँ पर देखिए, जैसे आपको यहाँ पर जो है इंस्टेंस का ID डालना पड़ता है, यहाँ पर जैसे आप क्लिक करोगे ना तो जितने भी अवेलेबल इंस्टेंसेस रहेंगे 1A में उनका नाम यहाँ पर ऑटोमेटिकली ड्रॉप डाउन में आ जाएगा, आपको सिर्फ सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो मैंने क्या किया कि मैंने यहाँ पर मैं अभी फ़िलहाल तो मेरा टेम्प वाला ही है, तो मैं इसको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर जो है ना आपको ये पूछा जाएगा कि यहाँ पर जो आप इस पर्टिकुलर इंस्टेंस को अटैच कर रहे हो इसका डिवाइस क्या है। ठीक है,
इस पर डिवाइस पे आईफोन पे क्लिक करोगे तो ये तो कुछ आएगा आपको। डिवाइस नेम फॉर अटैचमेंट अवेलेबल डिवाइस नेम डिपेंड ऑन द इंस्टेंस टाइप और फॉर एग्जांपल स्लैश यूज, ठीक है, F2P फॉर लिनक्स इंस्टेंसेस। ये देखो, ये मैंने आपको बताया था कि माउंट करने के लिए पाथ रहता है स्लैश डेव स्लैश SDF, ठीक है, इनको ये लोग डिवाइस बोलते हैं, मैं इनको पाथ ही बोलता हूँ, ठीक है। तो स्लैश डेव स्लैश SDF करके पाथ रहता है हमारा। जो डिफ़ॉल्ट पाथ रहता है ये, अगर अपने आपको मैंने प्रीवियस वीडियो में शायद से बताया कि जो हमारा डिफ़ॉल्ट पाथ रहता है वो ये रहता है। अगर मैं किसी और इंस्टेंस के का देखूँ यहाँ पर किसी और वॉल्यूम का, तो ये देखो, ये हमारा जो है ये डिफ़ॉल्ट पाथ रहता है, ठीक है, रूट वॉल्यूम का। क्योंकि ये जो है मेरा वॉल्यूम है, ये वाला वॉल्यूम हमारा मेरे VG dev2 करके एक इंस्टेंस है उससे कनेक्टेड है, और ये रूट वॉल्यूम है। तो उसका पाथ देखो क्या है यहाँ पे, स्लैश डेव स्लैश XVDM, ठीक है। आप क्या कर सकते हो कि आपने यहाँ पर जो है अभी जब आप इसको अटैच कर रहे हो तो आपको भी क्या करना है, यहाँ पर पहले वॉल्यूम सेलेक्ट कर लेना है। और क्योंकि ये जो है ये मेरा रूट वॉल्यूम है, क्योंकि इसके अंदर ही मेरे ऑपरेटिंग सिस्टम के फाइल्स वगैरह है, तो मैं क्या करूँगा कि इसको यही वाले पाथ पर डालूंगा, स्लैश डेव स्लैश XVDM, ठीक है, और इसको सेव कर दूंगा, अटैच कर दूंगा, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने क्या किया, अब मैंने जो है इस पर्टिकुलर वॉल्यूम का वापस से मेरे उसी इंस्टेंस से टेम्प वाले इंस्टेंस से मैंने अटैच कर दिया, ठीक है। अब आप ये पूछोगे कि भाई तो अलग अलग पाथ भी डाला जा सकता है क्या, और मुझे आपको ये भी बताना है कि आपका जो एक अभी तो हमने यहाँ पे ये किया है कि एक वॉल्यूम है, रूट वॉल्यूम था वो हमारा, उसको हमने एक पर्टिकुलर इंस्टेंस से जोड़ दिया, ठीक है। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा नेक्स्ट वीडियो में कि मैं यहाँ पर और एक नया वॉल्यूम बनाऊँगा जो कि कम्प्लीटली ब्लैंक रहेगा, उसके अंदर कुछ फाइल्स वगैरह कुछ नहीं रहेंगे, और उस वॉल्यूम को वापस से मैं मेरे इस टेम्प वाले इंस्टेंस के साथ कनेक्ट करूँगा, ठीक है। तो वो हम लोग देखेंगे आगे चल के कैसे होएगा। तो टिल देन इन दिस वीडियो इतना ही मुझे बताना था अटैचमेंट और डिटैचमेंट के बारे में, और आगे वाले वीडियो में हम लोग और थोड़ा देखेंगे अटैचमेंट को लेकर या नया वॉल्यूम कैसे बनाते हैं उसको लेकर, ठीक है। सो टिल देन थैंक यू और कीप वॉचिंग द वीडियो एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।